जय हिंद दोस्तों। दिल्ली सल्तनत ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने पर आ गया। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ दिल्ली सल्तनत. वी हैव completed all the dynasties of sultanate as well as the administration, art and architecture and the literature part. So today the miscellaneous portion, whatever is left out in this portion, जो भी उससे questions आए हुए हैं वो हम discuss करेंगे. So let's start with it. The first question here is, the game of polo was introduced in India by. Okay. So it was introduced in India by Turks. If you remember कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी मृत्यु भी चौगान खेलते हुए हुई थी. And चौगान is the polo, the modern polo. So it was introduced by Turks. ठीक है. Qutbuddin Aibak was fond of polo and he died in 1210 while playing this game. Next, you have to match the list 1 with list 2. Firoz Shah, okay, here are the um, rulers and here is what they have started. ठीक, or who have visited their court maybe. So the first is Firoz Shah Tughlaq. ठीक है, Firoz Shah Tughlaq, we have read enough about them. Construction of canals. He has constructed many canals. Balban has started this Navroz festival, Parsi festival. Alauddin has started Diwane Riyasat. Riyasat is was for this finances. ठीक. And जहांगीर के कोर्ट में आए थे सर थॉमस रो. ठीक है, तो जो इंग्लिश मैन थे उस टाइम पे जब शुरू किया था इन्होंने परमिशंस लेना. सो दिस थॉमस रो केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर. ऑलराइट, देख लेते हैं एक बार आंसर भी इसका. आंसर इज बी 3214. 3 2. अलाउद्दीन इज 1 4. ओके, सो करेक्ट है. अलाउद्दीन खिलजी established the department of दीवान रियासत फॉर लुकिंग आफ्टर द फाइनेंशियल मैटर्स. फिरोज शाह तुगलक ने 5 कैनाल्स बनवाई थी. बलबन ने नवरोज इंट्रोड्यूस किया था इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली. एंड द ब्रिटिश एम्बेसडर थॉमस रो, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sequence of arrival of these travelers? इब्न बतूता, ट्रैवनियर, अल-बरूनी, मनूची. तो इनका सीक्वेंस आपको बताना है कि इनका क्या सीक्वेंस है. ठीक है, तो सीक्वेंस इनका ये है कि सबसे पहले तो आया था अल-बरूनी विद गजनी. आपको याद होगा, वी हैव डिस्कस्ड कि अपने साथ स्कॉलर्स वगैरह लेके चलते थे. अल-बरूनी ने फिर एक बुक भी लिखी थी. सो अल-बरूनी वॉज विद गजनी. So 3. Then came this Ibn Battuta, and he came during this Muhammad bin Tughlaq. Then Travanier, Jean Baptiste Travanier. इसका पीरियड रहा है अराउंड 1600 समथिंग. लेट्स सी, या 1638 to 1663. So he came during the period of शाहजहाँ. और उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है उसमें लिखा है ट्रैवल्स ऑफ इंडिया. ठीक है, अब बाकी हम अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. एंड द लास्ट इज़ मनुची, निकोलो मनुची. सो ये इटालियन थे एंड ये आए थे दारा शिको के टाइम पे. ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज़ आवर क्रोनोलॉजी. अल-बरूनी, इब्न बतूता, ट्रैवनियर, मनुची. नाउ Al-Baruni कौन थे? He was a resident of Khiva, ancient Khwarizm, and he was in the court of last emperor of Khiva dynasty as a scholar and diplomat before Mahmud Ghazni victory over India. Then he came to India with Mahmud Ghazni during this invasion on India. तो उनके साथ ही वो आए थे. Next is Ibn Battuta. Ibn Battuta, he was a Moroccan traveler. And he came to India during the Sultanate period in the regime of Muhammad bin Tughlaq. This Tughlaq appointed him as the Qazi of India and Delhi. बाद में फिर उनको चाइना भेजा गया एम्बेसडर के तौर पे. एंड वाइल ट्रैवलिंग एंड ऑल, उनका जो भी ट्रैवलॉग था, ही कंपोज्ड दिस ट्रैवलॉग इन द नेम ऑफ रहला.
Then Jean Baptiste Tavernier 1668 to 1663, sorry 1638 to 1663. और ये फ्रेंच जेम मर्चेंट थे और ट्रैवलर थे. ही बिगेन हिज वॉयज इन द पीरियड ऑफ शाहजहाँ. ही मेड 6 वॉयजेज ऑफ इंडिया. तो जब शाहजहाँ के टाइम पे इन्होंने शुरू की थी, उसके बाद वो 6 वॉयजेज उन्होंने इंडिया की थी 1638 से लेके 1663 तक. एंड he wrote his travel accounts in his book Travels in India. So he is Jean Baptiste Tavernier. Next is Nicola. I don't know the exact pronunciation. May it be Manucci or Manusi. So um, actually Gucci is called. पहले मैं उसको गुस्सी. I used to pronounce it till I did not know the name. So I came to know it is Gucci. So I just started pronouncing Manusi as Manucci. I do not know, my logic might be bad, but so whatever it is, Niccolo Manucci, and he came to India in 1653 to 1708. Italian थे. India आए in the hometown Venice while traveling to Turkey and Asia. And इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी प्रिंस दारा शिको को भी एज अ कैनोनिया. लेटर ही ऑप्टेड द मेडिकल प्रोफेशन. एंड फिर ये फेमस थे अपनी बुक के लिए जिसका नाम था स्टोरिया डोमेगोर. स्टोरिया डोमेगोर वॉज रिटन बाय मनुची. ऑल्दो as an individual book it is not very famous because it is not asked many times, but Manucci was asked in the form of chronology or some other kind of questions as well, but this book was not that important till now. Still we have to keep in mind the Storia de Magor. It was written by Manucci. Next is, which of the following pairs has not correctly matched traveler and the country? So just now we have seen that Ibn Battuta was from Morocco. ये तो हो गया. Marco Polo इटली से था. And Abdul Razak Turkey. No, he was not from Turkey. He was from Iran, I guess. And देखते हैं. Nunes was from Portugal. ये सही है. तो let's search first Abdul Razak. Yeah, he was from Iran. Okay. So Ibn Battuta was a traveler from Morocco. He came to India during the tenure of Muhammad bin Tughlaq. He was a famous. Then Marco Polo was a famous traveler from Venice, Italy. He visited India during the rule of Pandyan ruler Marvarman Kulshekhara. Iranian ambassador Abdul Razak visited Vijayanagar during the rule of Devrai II. And Nunes was a Portuguese traveler. ये भी विजयनगर आए थे. ठीक है. Next is, who were called दस्तर बंदान. सो दस्तर बंदान कौन बोले जाते थे? दस्तर बंदान बोला जाता था उलेमास को. ठीक है. उलेमास को. उलेमास कौन होते हैं? उलेमास आर द स्कॉलर्स, द लर्नड पीपल. एंड वो एक तरीके का ड्रेस पहनते थे जिसकी वजह से उनको दस्तर बंदान बोला जाने लगा था. बाकी देखते हैं क्या है. सो या सल्तनत पीरियड के टाइम पे हाई पोजीशन या डेजिग्नेटेड रिलीजियस और जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो ऑनरेबल पीपल होते थे समाज के, उनको उलेमा बोलते थे. एंड कलेक्टिवली उनको दस्तर बंदान बोलते थे बिकॉज दे ड्रेस, उनके पास एक ऑफिशियल टर्बन होता, नॉट द होल ड्रेस, आई सॉरी, उनके पास एक ऑफिशियल टर्बन हुआ करता था जिसको मे बी वो सबका सिमिलर होता था, तो उसकी वजह से उनको दस्तर बंदान बोलते थे. Which Sultan demanded half the crops and land after measurement? Okay. Which Sultan demanded half the crops on land after measurement as revenue? So it was Muhammad bin Tughlaq as well as Khalji. दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें. One second. Which Sultan demanded half the crops on land after? Okay. After measurement as revenue. The question is a tricky one. यहीं पे हमको पकड़ना है. देखिए हमने पढ़ लिए हैं दोनों ही. वी हैव रेड दिस सल्तनत पीरियड रूलर्स. तो आपको अगर याद है तो हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी भी 50% टैक्स लगाता था रेवेन्यू के तौर पे और मोहम्मद बिन तुगलक भी लगाता था. ठीक है. डिफरेंस क्या था दोनों में? डिफरेंस ये था कि अलाउद्दीन ने फिक्स कर दिया था. एक बार उसने मेजरमेंट किया लैंड का, उस मेजरमेंट करने के बाद ही फिक्स दैट एट 50%. बट वॉट MBT हैड डन, उसने भी 50% किया था बट
डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, मतलब जितना होगा, फिक्स नहीं था उसका, ठीक है। तो इसका क्या था, मेजरमेंट के बाद फिक्स करने वाला जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक। सो मोहम्मद बिन तुगलक इज सीई 1325 to 51 सी। देखिए सीई और बीसी में भी शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार। पहले जनरली हम यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, एडी और बीसी, सो बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर दैट, बट अभी सीई इज हो गया है आपका, सीई इज इक्विवेलेंट टू एडी, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा, and BC is equivalent to BC, that is before common era। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक इज कंसीडर्ड एज एन इल फेटेड आइडलिस्ट, एंड आइडलिस्ट थे, हमने पढ़ा ही इनकी बहुत सारी जो अपनी ये स्कीम्स लेकर आए थे वैसी थी, वो थी तो बहुत आइडलिस्टिक, बट लोगों को उतनी पसंद नहीं आई, या उस पीरियड के लिए मे बी वो सही नहीं हो सकती थी। And he was owing to his ambitious schemes and novel experiments which ended in miserable failures because they were all far ahead of their time। तो वही है कि उस टाइम पे फिट नहीं हो रही थी, वो बहुत ही लर्नेड इंसान भी था, तो वो अपने समय से ज़्यादा सोच रहा था उस टाइम पे लोगों के लिए, बट तब लोगों को समझ नहीं आई वो चीज़, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, दिस एमबीटी इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू टू हाफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स ऑफ दोआब रीजन। तो जो दोआब वाले जो लोग थे, अब ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से ट्रिक क्वेश्चन बनते हैं मेनली यूपीएससी में, कि भाई कहाँ के लिए किया था, होल ऑफ हिज रूलिंग एम्पायर तो नहीं, ये किया था टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू टू हाफ द प्रोड्यूस ऑन द फार्मर्स ऑफ दोआब रीजन, दैट इज द लैंड बिटवीन गैंजेस एंड यमुना। बट जो उसकी डिमांड थी वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पे थी, ओके, दिस वॉज द वर्ड आई वॉज मिसिंग, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पे उसकी डिमांड थी, कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होगा, लेट्स से कि पहले एनालिसिस तो होता ही, अभी भी हम करते हैं एनालिसिस, तो उस टाइम पे भी हुआ करता था कि ये आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होता है, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इरिगेशन और द मानसून और जो भी रहता होगा उस टाइम पे, तो उसके हिसाब से ये हो सकता है उसका 50% दोगे। बट खलजी का क्या था, उसने फिक्स कर दिया था लैंड रेवेन्यू ऑन द लैंड बेस्ड ऑन मेजरमेंट, ठीक है, तो मेजरमेंट के बेस पे उसने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था, और इसका था कि प्रोडक्शन जैसा होगा उस पर देंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन द परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वाजरम प्रिंस। सही है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज़ खान इंडिया आया था, और उस टाइम पे एक फ्यूजिटिव प्रिंस जो है वो भी मतलब भागता हुआ चंगेज़ खान के डर से दिल्ली आ गया था टू आस्क फॉर द असाइलम इन दिस द कोर्ट ऑफ इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश का ये था कि उसको पंगा नहीं लेना था चंगेज़ खान से, बिकॉज ही न्यू दैट चंगेज़ खान अभी ही इज़ अ पावरफुल पर्सन, ही कैन इन्वेड इंडिया, और इस टाइम पे अगर उसने पंगा लिया तो वो सब तहस नहस करेगा। एंड इल्तुतमिश वॉज अबाउट टू मेक establish a dynasty here, you know, कुतुबुद्दीन ऐबक was the first ruler। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमेशा ही अपने आप को सुल्तान के तौर पे नहीं रखा, उन्होंने हमेशा, बिकॉज गजनी हैज़ गिवन हिम दैट अपॉर्चुनिटी टू रूल, तो उसने हमेशा अपने आप को उनके नीचे ही माना। फिर इल्तुतमिश को रियल हम बोलते हैं फाउंडर, बाय बिकॉज ही केम आफ्टर 4 years, सो ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश दिस, और इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे वो इस तरह के पंगे लेगा तो इस्टेब्लिश कर नहीं पाएगा अपनी डेनेस्टीज़ को। सो ही डिसाइडेड नॉट टू गिव असाइलम टू द प्रिंस, फिर चंगेज़ का वहाँ से ही वापस गया। सो दिस वाज द स्टोरी, तो ये सही है, ये हमने पहले पढ़ा है। देन नेक्स्ट इज इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। नो आई डोंट थिंक इट वॉज ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक, देखते हैं आंसर में क्या है। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय सेकेंड ऑफ विजयनगर दैट वास्को डे गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। देवराय सेकेंड पहले, आई थिंक बिफोर वास्को डे गामा कब आया था, वास्को डे गामा रीच्ड कैलिकट एट 1498 एंड देवराय टू वॉज आई गेस बिफोर some few years before the Vasco da Gama। okay answer is A, let's see, गलत तो है, अब रीज़न देख लेते हैं इनके।
या सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश चंगेज खान परसुएडेड ख्वाजम प्रिंस जलालुद्दीन हु फ्लेड टू इंडिया. इल्तुतमिश रिफ्यूज द असाइलम ऑफ प्रिंस एंड स्टेटमेंट 1 हो जाता है करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट तैमूर स्टार्टेड हिज कैरियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट इन 1370. तो तैमूर तो स्टार्ट किया 1370 में, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का ओके हाँ पीरियड जो इनका था वो 1351 तक ही था, तो ये भी गलत हो गया. देवराय सेकंड की डेथ हो गई 1446 में. वास्को डी गामा आया 1498 में. ठीक है. एंड आई थिंक ऑल्सो वास्को डी गामा ओके हाँ ठीक है. नेक्स्ट इज the following persons ruled in India at different periods of time. Select the correct chronological order of their rule from the coding scheme given at the time. अच्छा इनकी क्रोनोलॉजी बतानी है हमको. ओके आंसर को छुपा लेते हैं. हाँ सो क्रोनोलॉजी देखिए इनमें से शेरशाह, अलाउद्दीन, अकबर एंड रज़िया. रज़िया देखिए आप इल्तुतमिश की बेटी थी, तो सबसे पहले तो रज़िया हो गई इनमें से बिकॉज सल्तनत पीरियड की बात हो रही है. अब सल्तनत में से कौन बचा? अलाउद्दीन, क्योंकि ये तो दोनों बाद शेरशाह और अकबर हैं, ये आएंगे आपके मुग़ल पीरियड में. फिर आता है आपका शेरशाह, बिकॉज हुमायूं की लड़ाई हुई थी शेरशाह से, हु वॉज द फादर ऑफ अकबर. सो फिर शेरशाह बनेगा. द पीरियड ऑफ शेरशाह वॉज इट वॉज समथिंग ओ 1540 to 1545 आई गेस. यस ओके. एंड उसके बाद बनता है आपका अकबर. ठीक है 4312 ठीक है. पीरियड एक बार देख लेते हैं. रज़िया वॉज फ्रॉम 1236 to 1240, उसको हटा दिया गया था यहाँ से. अलाउद्दीन फ्रॉम 1296 to 1316. शेरशाह 1540 to 1545. अकबर 1556 to 1605. अब इसके बीच में 1545 से 1555 तक कौन रहा फिर? सो इट वाज हुमायूं. ओके. So next is consider the following events. Arrange these in chronological order. Transfer of capital by Muhammad bin Tughlaq. Afghanpur conspiracy. Then second battle of Tarain. And murder of Jalaluddin खलजी. ठीक है. देखो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन तो हमने देखा था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें इनकी डिफीट हुई थी, ये जीता था 1192. ठीक है. तो ये पहले की बात है, मतलब जब सल्तनत नहीं बनी है हम तब की बात करें. सल्तनत तो बनी आके 1206 में, तो ये उससे पहले की बात है, तो ये तो हो गया सबसे पहले. उसके बाद ऑप्शंस में है अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय तुगलक. तुगलक डायनेस्टी तो बाद में आई, पहले खलजी आएगी. बट अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट इज़ इट. लेट्स सी. आंसर इज़ ए 4321. ओके. इसके बाद मतलब ये मर्डर ऑफ जलालुद्दीन ही आएगा, सेकेंड ये हो जाएगा. व्हाट इज़ अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी? लेट्स सी. The defeat of Prithviraj Chauhan in second battle of Tarain by Muhammad Ghori led the establishment of Muslim rule in India. जलालुद्दीन खिलजी वॉज किल्ड इन 1296. ओके. ये इनको मार दिया गया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बना था. उलुग खान मोहम्मद बिन तुगलक. उलुग खान वॉज द नेम ऑफ बलबन आई गेस, नॉट दिस तुगलक. लेट्स सी. सो मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ सुल्तान घियासुद्दीन by Afghanpur conspiracy case. Okay, so this is also related to Tughlaq dynasty only. And the last is Muhammad bin Tughlaq transferred the capital from Delhi to Daulatabad, Devgiri. So this was also one of the experiment of Muhammad bin Tughlaq. Apart from that 50% of measurement of 50% of the land based on the produce. Next, कितने pairs हैं इसमें? All the questions are of pairing only. Which of the following pairs is not correctly matched? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रज़िया सुल्तान दिल्ली. देखो ये तो सही हो गया. बाज बहादुर मालवा का था, ये भी सही हो गया. बहादुर शाह वॉज नॉट फ्रॉम दिस
Gujarat. Chand Bibi was from um, okay, Bijapur. Chand Bibi is from Bijapur. So Chand Bibi is a Muslim woman, was a Muslim woman warrior from medieval India. She acted as a regent of Bijapur and regent of Ahmednagar, and she was a daughter of Hussain Nizam Shah first of Ahmednagar. Thus option 2 is not correctly matched, while rest are the correctly matched options. Okay, Bahadur Shah was from Gujarat only. Match the following, match list 1 with list 2. Again list 1 list 2, ठीक है. कौन सा रीजन किस राजा के रूल में था, लाइक रणथंबोर was हमीर देव. ओके, रणथंबोर was हमीर देव. देन चित्तौड़, दिस राणा रतन सिंह, चित्तौड़गढ़. Okay, now comes Devgiri and Gujarat. So Devgiri is, let's see in the answer, Devgiri is Raja Rai Ramchandra. Okay, and Gujarat was Karn Dev. Next, reign of Krishnadev of Vijayanagar, construction of Qutub Minar, arrival of Portuguese in India, death of Firoz Shah. अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है. देखिए इसमें से हम अभी हमने अराइवल्स नहीं पढ़े हैं ऑफ द ब्रिटिशर्स, बट इतना आपको आइडिया होगा नॉर्मली भी. बाकी हम देखते हैं. देखिए कुतुब मीनार की बात करें तो ये बात है 1206 से 1210 के बीच में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था. ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे पहले का. अभी इन सब में से आपका जो तुगलक डिनेस्टी है वो आएगी, क्योंकि विजयनगर तो हमने देखा था ना 1336 में हरिहर और बुक्का ने एस्टेब्लिश किया. संगम, सुलभ, अरावीडू एंड तुलु. एंड दिस विजयनगर, कृष्णदेव राय, ही वॉज फ्रॉम अरावीडू डिनेस्टी. तो ये तो बात है बात की, जब बाबर केम टू इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम. आई थिंक विजयनगर, दिस कृष्णदेव राय वॉज द रूलर, बिकॉज बाबर हैज़ written about this sultan or about this ruler in his book as one of the most important ruler of India. इसका मतलब ये बाद में हो गया. अब यहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है कि पैरेलली चला था, बट विजयनगर एम्पायर पैरेलली चला था, और वो भी 1336 के बाद. ठीक है, क्योंकि एमबीटी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, हरिहर और बुक्का को जब उसने इन्वेड किया था नीचे साउथ में थोड़ा सा, तो हरिहर और बुक्का को उठा के लेके आए थे, फोर्सफुली उनको मुस्लिम बनाया था. बाद में वो वापस गए किसी एक्सपीडिशन के लिए, और उनको वहाँ पे उनके गुरु मिलते हैं, सायन और रविंद्र, सम नारायण और समथिंग वाज द नेम, आई एम फॉरगॉट. सो वो मिलते हैं और वो दोबारा कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो विजयनगर एम्पायर या डिनेस्टी की नींव रखते हैं. ठीक है, तो ये तो बाद में आएंगे काफ़ी. ये थर्ड डिनेस्टी थी फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर. तो ये हो गया. उसके बाद है आपके 2413 हो जाएगा इसका, 2431 हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, सो अराइवल ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया. पोर्टुगीज़ अभी हमने देखा कब आ गए थे, 1498 में आ गया था, और ये 1500 समथिंग की बात है. सो 2 4 3 and 1. Correct sequence is 2431. The construction of Qutub Minar was started by Aibak, completed by Iltutmish. The death of Firoz Shah Tughlaq in 1388 AD. The arrival of Portuguese Vasco da Gama in 1498 AD. And the reign of Krishnadev Rai of Vijayanagar from 1509 to 1529 AD is the correct chronological order. So option A जो है वो हो जाएगा correct answer. ठीक है. Next, under the following passage, in the course of a career on the road spanning almost 30 years, he crossed the breadth of the eastern hemisphere, visited territories equivalent to about 44 modern countries, and put behind him a total distance of approximately 73,000 miles. The world's greatest traveler of pre-modern times, to whom the above passage refers to, is. So he was, I think, इब्न बतूता. ओके, उसने अपनी बुक भी लिखी है, ट्रैवलॉग भी लिखा है, दिस रहला.
या सो इट वॉज इबन बतूता। मार्को पोलो ने ट्रैवल किया था ऑलमोस्ट 24,000 माइल्स ओवर 24 ईयर्स, स्टार्टिंग हिज जर्नी इन 1271। मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया, चाइना, मंगोलिया ये इंक्लूडेड थे इसके ट्रैवलिंग अकाउंट में, विच वॉज एडेड बाय मंगोलियन रूलर कुबलई Khan. Marco Polo was one of the pioneer nomadic, but Ibn Battuta was a great wanderer than him about the length and massiveness of the voyages. He crossed the breadth of South Africa, Western Africa, Southern and Eastern Europe, Middle East Asia, Indian subcontinent, and Middle Asia, Southeastern Asia, and China. Approximately 44 countries with 73,000 miles. ठीक है, सो इन 30 years ऑफ हिज ट्रैवलिंग कैरियर 30 साल वो घूमे और उन्होंने लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूरा कॉन्टिनेंट्स की छान मारी। एंड ये जो 73,000 माइल्स होते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1,17,000 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, so it is this, the earliest reference of the use of magnetic compass in Indian Sea was by, तो earliest use of magnetic compass किसने किया था इंडियन सीज में? So it was done by सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी इन्होंने किया था। Earliest reference to the use of magnetic compass in the Indian seas was given by Sadruddin Muhammad Aufi. The names of his books were Lubab ul Abab and Jawami ul Hikayat. It is Jawami ul Hikayat in which he gave the reference to magnetic compass. ठीक है, तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट, हु अमंग, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Here they should give all, if he came to India, then during which sultanate, during which period he came. Maybe he came, he may not come also. I do not know about this man so much. So let's see, अगर कुछ आगे कोई क्वेश्चन होता है तो we'll get to know. Next, who among the following rulers divided his troops into the units of 100, 250 and 500? ठीक है, कौन सा रूलर था जिसने अपनी ट्रूप्स को डिवाइड किया था 200, 250 और 500? सो ही वॉज इस्लाम शाह। इस्लाम शाह वॉज द सन ऑफ शेर शाह। He ruled over North India roughly for 8 years and died in 1553 AD. And he divided his army battalions into the units of 50, 200, 250 and 500. Which of the following pairs of kings of ancient India and medieval periods of Indian history and the works by them is correctly matched? Okay. So देखिए, अभी पूछ रहे हैं कृष्णदेव राय। सो कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदा लिखी थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा भोज ने ये लिखी थी सम्रांग सूत्रधार। बाकी दो नहीं पता है मुझे, हम देख लेते हैं ऑप्शंस। आंसर इज बी। सो करेक्टली मैच तो ये हो गई। महेंद्र वर्मन ने लिखी है मट्ट विलास प्रहसन, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुक एज वेल। मट्ट विलास प्रहसन वॉज रिटन बाय महेंद्र वर्मन। कृष्णदेव राय वाला इजी एलिमिनेशन हो गया, मुक्तमाल्यदा हमने पढ़ रखा है इसलिए। और भोजदेव जी ने सम्रांग सूत्रधार लिखी है। सोमेश्वर जी ने आई थिंक जो बची हुई है मनासुलासा। सो इट वॉज रिटन बाय सोमेश्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड? सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, जौहर प्रैक्टिस, नन ऑफ दीज। तो देखिए, सती पहले से एविडेंस हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पुराना एविडेंस आपको याद है, हमने एंशियंट इंडिया में पढ़ा था, कहाँ से आया था? एरन, ठीक है, एरन इज इन MP। देन चाइल्ड मैरिज के कॉन्सेप्ट भी रहे हैं पहले से, बहुत सारी डायनेस्टीज में देखा है कि प्यूबर्टी से पहले ही शादी हो रही है, सो दैट वाज द चाइल्ड मैरिज कॉन्सेप्ट। जौहर की जो प्रैक्टिस आई थी वो राजपूत पीरियड से शुरू हुई थी, ठीक है। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, राजपूत परफॉर्म्ड अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सती, जिसको जौहर बोलते थे, एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द ऑनस्लॉट दे एक्सपीरियंस्ड
इट वॉज डन बिकॉज ऑफ मुस्लिम इन्वेजन. हिंदू वुमेन फियर टू बिकम द बूटी ऑफ द कैप्टर. होता क्या था पहले, इन्वेजन्स होते थे तो जनरली वहाँ की औरतों को लेके जाते थे, वो एक बूटी हो जाती थी, वॉर बूटी हो जाती थी वो. तो ये पुराने फेज़ में भी होगा, बट इस इन्वेजन के टाइम पे जब आया तो ज़्यादा हुआ. तो वॉर बूटी से बचने के लिए और उनकी कैप्टिविटी से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए जो प्रैक्टिस शुरू की गई थी विद द वुमेन ऑफ राजपूत डिनेस्टीज, दैट प्रैक्टिस वाज जौहर. कि अगर कुछ ऐसा होता भी है तो लास्ट रिजॉर्ट, अगर उनका पूरा जो किंगडम है वो किसी वजह से नहीं बच पाता है, सो दे विल प्रैक्टिस द जौहर एंड कलेक्टिवली, जिससे कि वॉर बूटी के तौर पे वो यूज़ ना हो पाए. ठीक है. एंड मतलब एट्रॉसिटीज ऑब्वियसली वॉर बूटी के हिसाब से जाएंगे तो एट्रॉसिटीज़ भी होंगी. दे वुड बी रेप्ड, टॉर्चर होगा, कुछ और भी तरीके की इग्नोमिटीज़ हो सकती हैं. तो उन सबको बचने के लिए दे फॉलोड दिस प्रैक्टिस. In pre-medieval kingdom of Rajasthan, the designation Nai Mittika was used for. Nai Mittika, okay, try करते हैं. Royal Bard, head of public health department, then state astrologer and chief judicial officer. Look, I have no idea. Let's see what we call तुक्का मार सकते हैं. State Nai Mittika, astrologer maybe, yeah. So they were the state's astrologers. In pre-medieval kingdoms of Rajasthan, the designation Nai Mittika was used for state's astrologer. Who among the following medieval scholars or writers belong to the Jain religion? तो इनमें से जैन रिलीजन को बिलोंग करते थे हेमचंद्र सूरी. He was a great scholar and follower of Jainism. He was introduced to Siddharth Jaisingh and soon rose to prominence in the Solanki royal court. Later, Jaisingh built mandap in Abu Mountain and established the statues of Jain Tirthankar. Next, again list 1 with list 2. बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ कलिंगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड बैटल ऑफ तराइन. ठीक, तो बैटल ऑफ तराइन तो अभी हमने बहुत बार पढ़ लिया. सो इट इज़ 1192. बैटल ऑफ कलिंगा, दैट वाज ऑफ अशोका पीरियड 261. बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इट इज़ 1576, क्योंकि ये महाराणा प्रताप वर्सेस दिस अकबर्स पीरियड के टाइम पे हुई थी. बैटल ऑफ प्लासी 1757. इट वाज अ स्ट्रैटेजिक बैटल जहाँ से ब्रिटिश रूल का स्टार्ट हुआ और बैटल ऑफ बक्सर ने उस पर मोहर लगा दी थी कि हाँ, नाउ दे विल रूल ओवर इंडिया. So let's check the answer. 4 1 2 3 4 1 2 3. Okay, correct. So Battle of Plassey on 23rd June 1757. In the Battle of Plassey, the forces of East India Company under the Robert Clive defeated the army of Siraj-ud-Dawla, the then Nawab of Bengal. Mir Zafar, Rai Durlab and Yar Latif Khan headed the Nawab's army. Mir Zafar was bribed by Robert Clive and was the cause of Nawab's defeat. Kalinga War. Ashok led a vast army against Kalinga in 261 BC. The freedom-loving people of Kalinga offered stiff resistance to Mauryan Empire. The 13th Rock Edict of Ashoka throws light on this war. At least 1 million Kalingans were killed, while another 50,000 were taken as prisoners. Almost an equal number of Magad soldiers were also killed. Battle of Haldi Ghati was fought between Maharana Pratap and the forces of Akbar in June 1576, in which Akbar jo tha, he came out as the winner. Second Battle of Tarain was fought between Ghuri army of Muhammad Ghori and
Rajput army of Prithviraj Chauhan. This battle took place in 1192 AD and it was near Tarain. In this battle, Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Qauri. Next question. Again, match the following. So it is Haqaiq-e-Hind, तहदीबुल अखलाक, कुंजल तिजर, जवामुल हिकायत. ओके ये तो बुक्स के नाम है. अब इनके राइटर के नाम देखने हमको. ऑफी साहब की अभी हमने जस्ट बुक पढ़ी ना. जवामली. ओके इन्होंने दो बुक लिखी थी, लुबाब अल अलबाब और जवामी उल हिकायत, जिसमें इन्होंने कंपस के बारे में बताया था. सो इट इज़ हियर. ठीक है. नेक्स्ट इज तहदीबुल अखलाक लिखी है इब्न मिस्कावाय. आई एम even not able to pronounce how to do that. ये इन्होंने लिखी है. देन कुंजल तिजर ये लिखी है बैलाक एल कबाय की. देन जवामुल हिकायत इट वाज रिटन बाय, ये तो हमने देख लिया. हकायक हिंदी लिखी है अब्दुल वहीद बिलग्रामी. तो देख लीजिएगा, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगेन ऐसे मल्टीपल टाइम्स नहीं आई हुई हैं, फिर भी आई तो है ही एक बार. एंड दिस इज़ ऑफ झारखंड PCS 2016. सो जस्ट लुक एट दिस. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट. अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. अकबर, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, शेर शाह. ओके सो अकबर ने आईने दहशाला शुरू किया था. मोहम्मद तुगलक ने सड़क आज़म, बिकॉज इन्होंने कंस्ट्रक्शन बहुत कराया था. इल्तुतमिश चहलगामी नोबल्स इस्टेब्लिश किए थे जो बलबन ने बाद में हटाए थे. एंड शेर शाह आई थिंक टोकन करेंसी. बी 3421 3. ओके आई एम सॉरी, कुछ तो गलत हो गया. हाँ सड़क आज़म इज ओके. दिस इज सड़क आज़म इज शेर शाह बिकॉज उन्होंने सराय के निर्माण कराए थे. हाँ ओके. सो अकबर इज आईने दहशाला 3. मोहम्मद तुगलक ने टोकन करेंसी शुरू की थी. देन इल्तुतमिश चहलगामी नोबल्स और शेर शाह सड़क आज़म. ठीक. नेक्स्ट इन 16th century शेर शाह बिल्ट अ मेजर रोड रनिंग फ्रॉम सोनार गांव बंगाल टू लाहौर पाकिस्तान. इसको सड़क आज़म बोलते थे, जिसको अभी हम GT रोड बोलते हैं. एंड इट सर्व्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक टू द रिमोट प्रोविंसेस of his vast empire. Muhammad Tughlaq issued token currency. The system of Ain Daishala was related to Akbar land revenue system, and Iltutmish formed Chehalgami nobles or Turkana Chehalgani. Next is during the 13th and 14th century AD the Indian peasants did not cultivate. तो 13-14 century के आसपास इनमें से क्या ऐसा था जो Indian peasants cultivate नहीं करते थे? So they cultivated wheat, rice, barley, but not maize. मक्का नहीं करते थे. इंडियन पीजेंट्स मेज़ कल्टीवेट नहीं करते थे 13वीं-14वीं शताब्दी में, क्योंकि इब्न बतूता ने ये बोला है दैट यूजुअली दे कल्टीवेटेड राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन थ्राइस इन अ ईयर. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड वेरियस स्पाइसेस वर बीइंग सोन इन सदर्न इंडिया. मेज़ वॉज ब्रॉट बाय पोर्टुगीज़. ओके मेज़ कौन लेके आया था? पोर्टुगीज़ लेके आया था. नेक्स्ट इन मिडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महत्रा एंड पट्टा किला वर यूज्ड फॉर.
ओके, सो आंसर इसका स्टार मार्क किया हुआ है, लेट्स सी क्या इशू है. According to an article entitled Village Administration in India, published in the Indian Political Science Association in January-March 2004, the center of administration in India was a village in ancient times. The village government was carried under the supervision of village headmen. इसको ग्रामीणी बोलते थे. नदर्न इंडिया में ही वॉज कॉल्ड ग्रामिका और ग्राम्यकांड मुनुंद in the eastern India. Then पट्टालिका और ग्रामुक्ता इन महाराष्ट्र, तो इसी को पट्टकिला और ग्रामुक्ता भी बोलते थे. और गवुंडा इन कर्नाटका एंड महत्तका इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, ओके, तो ये दोनों एक ही थे बट इसीलिए दो ऑप्शंस. ओके, इसीलिए स्टार इन्होंने दिया है. तो अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता था. इन द टेक्स्ट इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी राइटर दिनेश चंद्र सरकार, महातका हैज़ बीन स्टेटेड एज द हेडमैन ऑफ द member of पंचायत बोर्ड, and it is appropriate to mention here that Dr. Harishchandra Verma in his book मध्यकालीन भारत भाग 1, okay, part 1, has described the Mahatar as the category of artisans found in inscriptions. Their head was called Mahatar. तो दो लोगों ने अलग अलग जगह पे दो बातें लिखी हैं, इसलिए इसका आंसर जस्टिफाई नहीं किया जा सका. ऑल्दो कुछ जगह पे विलेज हेडमैन के लिए बोला गया, पंचायत कमेटी के हेड के लिए, और कुछ में बोला है कि आर्टिसंस के हेड को महातर बोलते थे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौर एंड तीन वॉट एवर इट इज़, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद. तो अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है, ये पांडुआ वेस्ट बंगाल में है. इसको बनवाया था सिकंदर शाह ने अराउंड 1360 AD. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गॉट द जंतर महल ऑफ मांडू कंस्ट्रक्टेड? तो मांडू में जो जंतर महल है वो किसने बनवाया था? अगेन इसका आंसर कुछ तो डाइसी है, देखते हैं. जहाज महल जो है वो पॉपुलर मोनूमेंटल बिल्डिंग है मांडू में, एंड ये बनी थी गयासुद्दीन खलजी के रूल के टाइम पर. देर इज़ नॉट एनी जंतर महल इन मांडू, जो कि बनवाए थे, इसीलिए MPPSC ने इसको कैंसिल कर दिया. ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जंतर मंतर जो है वो कितनी जगह पर है. एट हाउ मेनी प्लेसेस इन इंडिया डज जंतर महल is located or jantar mantar is located. Fine. So this was about Delhi Sultanate, all about Delhi Sultanate. कुछ इसमें mistakes हुई हैं हमसे, मुझसे भी हुई हैं in the pronunciation. Please pardon me for that. And यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत को वाइंड अप करेंगे. अब जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे दैट वुड बी प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डक्कन प्रोविंस. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया और डक्कन प्रोविंस के प्रोविंशियल जो डायनेस्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं इस टाइम पे. We will see that in the next chapter. So this was all for now. रिवाइज करते रहिए, बहुत टिपिकल नाम आ जाते हैं कभी कभी, तो करते रहिए बिकॉज फिर it would be very difficult for to remember. So keep revising.